it's a very positive thing when women come together to protest about anything to do with their rights, and this is a huge cause that I'd like to support, and I'd So come here with yesterday, when we see the news, the LPG cylinder has had a hike of 145 rupees. What do you have to say on that as being, a person who runs a household? I mean, there's nothing much to say. Everything that's illogical is happening now. That's a very small thing compared to everything else that's happening now. Compared to what we've been hit by GST and demonetization, I think now we've become thick-skinned and we're not shocked by anything that comes. So what is your take on the whole NRC and CAA issues? I think it's ethically basically wrong. It's an illegitimate position. So I'm totally against it. What's your name? Nimi. Nimi. So what do you do by profession or what do you do? I work in the theatre. I'm a theatre artist. I've also worked as a journalist. So your take on the whole NRC CAA issue? According to me, then This protest. yeah, the NRC and the CAA, I find as part of BJP's divisive politics, where it targets a particular community. I think the aim of the BJP is to target the Muslim community in India, but it's having such varied results in Assam, where it's already been tested, because India is not the greatest for documentation, as it's been proven in the past with the census. Oh, Rafale. I mean, if the government can't even find their own papers, how do they expect every citizens to have, papers about... Yesterday something very crazy took headlines, that is 145 rupees hike on a per LPG cylinder. What do you I read about it. I don't think the government cares that much about people who can't afford LPG. I think their interests are in looking after the Ambanis and Adanis of the world, and they've been, I believe, pretty well taken care of. Years back, I think that we were asked to forego our subsidies to provide one LPG cylinder to a rural family. I believe we did. And to consider a hike of 145 rupees, what do you have to say on the whole? Maybe the people in the government and people in power have not given up their subsidies, so maybe the poor people still have to keep paying another 145 extra. तो हम देख रहे हैं आप और आपकी बच्ची कम से कम 50 प्रोटेस्ट अटेंड कर चुके हो। ये छोटी सी कम से कम 1 साल की बच्ची हर आज़ादी के नारे लगाती है, आपका क्या कहना है इस पे? ये सिर्फ हम आज़ादी इसलिए कर रहे हैं कि तो मोदी जी को रियलाइज़ होए कि छोटे छोटे बच्चे अपने सर्दी नहीं देख रहे, बारिश नहीं देख रहे, कुछ भी देख रहे नहीं, हम लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट ये तो उनको कुछ तो फील होना चाहिए ना। आपकी बेटी का नाम क्या है? सैयदा नूरुल हुदा। ये एक इनकलाब है और इनकलाबी तहरीक जो है पूरे देश के अंदर चल रही है, उसी का ये बिलाल बाग जो है उसका हिस्सा है। और हमें उम्मीद है कि यहाँ जो ख़वातीन जमा हैं, जो स्टूडेंट जमा हैं, उनकी आवाज़ जो है हुकूमत तक पहुँचेगी और एक इनकलाब जो है पैदा होगा। बीजेपी के सरकार को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो अवाम के आगे जो है कामयाब नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि वो अपनी इज़्ज़त बचाना चाहते हैं, तो ज़लील होने से पहले जो है इस क़ानून को जो है ख़त्म कर दें और अवाम की राय पर जो है कायम रहें। हम लोग अलग अलग टाइप के जगह, संस्थान ये सब खोल सकते हैं ताकि हमारा जितना भी कल्चर है। What's your name? आई एम निदा। तो आप मैं देख सकती हूँ कि आप बच्चों को कुछ पढ़ा रही हैं, कुछ सिखा रही हैं, तो आप वो क्या पढ़ा रही हो, क्या सिखा रही हो? मैं बच्चों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स सिखा रही हूँ। मैं बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कोई उनसे कभी नहीं छीन सकता। एंड आई फील कि देम बीइंग किड्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू नो दिस एट अ वेरी वेरी यंग एज कि कुछ चीज़ें हैं जो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी गुंडी गवर्नमेंट उनसे छीन नहीं सकती है। और कई सालों से खिदमत अंजाम देते हुए आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी जिंदाबाद जिंदाबाद आपसे थोड़ी मुझसे ज्यादा उम्र की है, पर ज्यादा से ज्यादा कम उम्र की। मुझे बड़ी खुशी है तुमको देखे कि मेरी बहनें बुर्का भी पहन के यहाँ आके अपनी शक्ति दिखा रही हैं। बहुत सालों से बोल रहे थे, आपने सबने आज दिखाया है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। ये तो आत्मा शक्ति है, अंदर की शक्ति है।
कोई भी ना बोले तो अभी आप सुनने वाले नहीं हैं। आजादी के आंदोलन में गांधी जी ने कहा था, जब तक देश की महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी तब तक देश आजाद नहीं हो सकता। अभी तो आप जैसे देख सकते हैं कि 2 महीने से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। गवर्नमेंट को समझ जाना चाहिए कि लोग खुश नहीं है इस चीज़ से। स्टूडेंट्स को इसीलिए टारगेट कर रहे हैं बिकॉज वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर एंड once we are out on streets they can't do anything. Once the students are united, basically they're scared of students, that's why they're attacking. down down सरकार पे सरकार और अपन जनता सरकार। क्या मैसेज है आपका? क्या मैसेज है बोले तो सबको अच्छा देखना, माँ देखे जैसा। तो पूरा सब राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इन्हें हमारी कौन सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सब अच्छे रखो, सब देखो। इन्हों ऐसा करे तो आको, अब क्या करना बोलो, दुनिया को भारत करे तो क्या बोलती, जलजला आगा तो चले जाती नहीं पूरे। हाँ, अब तू क्या कर रहा है सो बोल बा, क्या चाह रहा है तू, क्या चाह रहा है? सीधा इज्जत से नाम कमा, नाम गमाना को। तेरी अम्मा तुझे पैदा करिए नहीं, तेरी अम्मा का नाम कमा, नाम गमाना को, बस होता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलिया कौशर है। कौन सी क्लास में हो? 3rd स्टैंडर्ड, कौन सी स्कूल? विजडम इंग्लिश हाई स्कूल। तो आप यहाँ प्रोटेस्ट में क्यों आई हो? हम एनआरसी रिजेक्ट करने आए हैं। एनआरसी रिजेक्ट। हाँ। आप क्या समझती हो एनआरसी से? हम हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो आप सब मिलके रहना चाहते हो? हाँ। तो आप ये एनआरसी को रिजेक्ट करेंगी? हाँ। तो अब हमारे साथ एक तबस्सुम रो जो एक गांधीन एक्टिविस्ट है, आइए उनसे पूछते बिलाल बाग को 10 दिन हो गए आज स्टार्ट हुए, उनको कैसा महसूस होता है 10 दिन से यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई है? यू नो इट मेक्स मी फील वेरी, बहुत खुश होता है, बहुत खुश होती है। आई फील वेरी हैप्पी टू सी देम because you know people from my community coming out, sitting like that, asking for their rights, which is their birthright. It's not a right which is only for one, it's not a right for one majority community. It is the right of every Indian that they are coming out from their houses. Normally they don't come, they are bound by their own restrictions, but they're coming out and fighting for the right has actually done me proud today. But have you seen the Delhi police? Unfortunately, what is really disappointing is the status of the police today, because they are supposed to be apolitical. They are not supposed to be part of any political party, because there's one party today, there's another party tomorrow. So, but they are acting like absolute paid people for the BJP. They seem to be beating women. I mean, that is the most disappointing. There is a sedition case in Bidar, where the woman has just put, I mean, today nobody has the freedom to say anything. You are abusing the other leaders from other parties 24/7. I just find that ridiculous. जैसे कि आपने देखा वो थी हमारी इनकिलाबी औरतें जो अपनी सड़कों पे उतर चुकी है इनकिलाब के लिए और अपने हक की मांग के लिए। तो मैं हूं नूर ज़ाहिरा, कैमरा पर्सन शादाब के साथ, गोहाश बैंगलोर एक्सक्लूसिव के लिए। थैंक यू सो मच।